Bismillahirrahmanirrahim. So today's lecture is based on Fermi-Dirac statistics and the free electrons heat capacity. Previously मैंने आपको थोड़ा सा Fermi-Dirac distribution के बारे में बताया था at different temperatures. So let's see a bit in detail of this Fermi-Dirac statistics. Where is it applicable? We know that electrons are fermions, like um, जैसे इसी तरह और भी particles हैं, for example muons है, तो ये particle fermions हैं. Okay, fermion के लिए कुछ specific rules हैं, जिनमें से एक Pauli's screen principle है. For that, two electrons cannot have the same quantum numbers. तो उनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी दैट इज एक्चुअली फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि क्लासिकल पार्टिकल्स हैं जैसे उनके लिए बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, इवन इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स can be considered as classical particles at a very large temperature. But of course there is like restriction के आप कब उनको classical particle के तौर पर treat करते हैं. The Fermi-Dirac function is given by or the distribution function is given by 1 over exponential e minus ef by kBt plus 1, where this ef is your traditional Fermi energy. Traditional I mean जो previously हम पढ़ रहे हैं, that's in continuation of that. Okay. While this E is of course the energy of some allowed state. तो इसको तीन different temperatures ranges पे देखते हैं. One is at absolute zero, the other is like any temperature in a certain range from, like of course it's greater than absolute zero, but it's a finite value, not a very very large temperature. Very very large temperature is the third case. So for the first case, if the temperature is 0 Kelvin, of course अगर आप यहाँ पे 0 प्लग करते हैं तो ये फंक्शन इन्फिनाइट हो जाएगा और 1 over infinity is goes to 0. लेकिन यहाँ और भी दो सिनेरियो हो सकते हैं which should be encountered, कि ये जो एनर्जी है E and EF, इनका आपस में कोई रिलेशन देखा जाए. If this energy E is smaller than EF, then the number over here is negative. EF some say something 5 है और E 4 है, then you will have a -1, और ये अब 0 है तो minus infinity यहाँ होगा. Minus infinity like exponential minus infinity goes to 0, then you will have this Fermi-Dirac distribution to be 1. What it means, अगर एनर्जी E स्मॉल है फर्मी लेवल से, सो सेट अ फर्मी लेवल के लेट्स से ओके अज्यूम इट कि ये एक फर्मी लेवल है. तो इस फर्मी लेवल पे इसकी जो एनर्जी है इट्स गिवन बाय EF, और इस EF से जितनी भी स्मॉलर एनर्जीज हैं, the scale of energy is drawn over here. So इससे जितनी भी स्मॉलर एनर्जीज हैं वो सारी की सारी below this Fermi levels, these energy states are all occupied states. For that, क्योंकि Fermi-Dirac distribution is 1, so ये जितनी भी इसके lower states हैं वो सारी की सारी occupied states हैं, completely filled states हैं. What if कि ये जो energy है, this energy is larger than this Fermi energy, तो उस केस में आप देखिए यहाँ पॉजिटिव नंबर होगा, और ये पॉजिटिव नंबर मतलब यहाँ इन्फिनिटी 1 over infinity goes to 0. At absolute 0,
फर्मी लेवल से अप जितनी भी स्टेट्स हैं, these all are empty states, completely empty states, क्योंकि फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ जीरो है. So these are non-occupied states above this Fermi level at absolute zero, और जो lower हैं of course these are completely filled states. और यहाँ ये जो फर्मी ये एनर्जी स्केल है दैट्स अ फर्मी एनर्जी, इसके रेफरेंस से एब्सोल्यूट जीरो की बात की जा रही है. ओके, सो एट एब्सोल्यूट जीरो जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट की हो सकती है वो इन ऑक्युपाइड स्टेट की होगी. दैट कैन बी दिस ई एफ, नो मोर देन ई एफ, क्योंकि इससे अपर तो स्टेट्स ही एम्प्टी हैं, राइट. सिमिलरली ओके, सो द नेक्स्ट रीजन इज के अगर आप इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो नहीं कंसीडर करते, इट्स सम अदर टेम्परेचर. Okay, let's say it's different from this 0 Kelvin. 0 Kelvin से कोई और टेम्परेचर है, तो उस केस में एक सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर ये एनर्जीज इक्वल, ऑफ कोर्स अगर वो टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो ये फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ हो जाएगी. हाँ, अगर एनर्जी जो है ये एनर्जी फर्मी लेवल के इक्वल है, मतलब हम फर्मी लेवल पे एग्जैक्ट बात करें कि other than absolute zero energy is equal to Fermi energy, then we have E minus EF goes to zero. This Fermi Dirac function is 1/2. So जो फर्मी लेवल फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो आपका हाफ हो जाएगा. अगर आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में जाते हैं, ऑफ कोर्स दिस विल बी टू 1/2, और जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो हाफ के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा. What if the temperature is much large? It goes to somehow the infinity. If the temperature goes to infinity, अब इसको आप separate करके देख लीजिए, E by kBT minus EF by kBT. अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो मतलब ये जो एनर्जी है kBT इट्स मच ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी. सो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और इसी तरह इस वन फैक्टर को भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से. Then you will have this exponential minus E by kBT, which is your Boltzmann distribution, जो कि classical phenomena है. So at larger temperature, the particles will have some large energy. तो वो उनकी जो distribution है, that's a classical distribution. It makes sense, yes. अगर आप lower temperature पे जाते हैं, the particles are in the ground states. ओके, सो अगर वो अपनी ग्राउंड स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं या ग्राउंड स्टेट में हैं, तो वहाँ एक स्टेट में पार्टिकल कितने आएंगे, विद डिफरेंट क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे. अगर आप स्पिन और एन की बात करते हैं तो 2 पार्टिकल वहाँ हो जाएंगे. ओके, सो एक स्टेट 2 पार्टिकल रख सकते हैं जिन दोनों के क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होंगे. मतलब वो उस स्टेट में बाउंडेड होंगे, उससे बाद फिर नेक्स्ट फिल होगी, फिर नेक्स्ट फिल होगी. लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मतलब जैसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के केस में, तो दे आर जस्ट फ्री पार्टिकल्स, देयर इज नो इंटरेक्शन. ओके, तो उस केस में दे आर जस्ट लाइक द बिलियर्ड बॉल्स. सो उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब वो फ्रीली पार्टिकल मूव कर सकते हैं, तो आप उनको क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ट्रीट कर सकते हैं. दैट्स when the temperature increases, so the quantum effects lost. क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फिर उस पर अप्लाई हो रही है ना. Okay, this was all about the Fermi-Dirac distribution. Let's see what happens to the electronic heat capacity. जैसे मेटल है, मेटल के आप देखिए जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस, और उसके बाद जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, these conduction electrons are free electrons, and these free electrons obey the classical laws, or the statistical mechanics laws. तो अगर इन लॉज को आप देखें, जस्ट लाइक द फ्री पार्टिकल्स के तौर पे बिहेव कर रहे हों इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल वी कंसिडर अ मोनोटॉमिक गैस, जिसके केस में आप एक इलेक्ट्रॉन को अगर देखें 3D बॉक्स में वो बंद है, तो उसके पास तीन डिफरेंट डायमेंशंस, इंडिपेंडेंट डायमेंशंस है जहाँ वो
मूव कर सकता है। सो एक डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी जो है 1/2 kBT है, देन 3 डायमेंशन है तो 3/2 kBT हो जाएगा। अगर आपके पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या होगा कि आप सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज को सम करते जाएं, देन यू विल अल्टीमेटली एंड अप विद द टोटल एनर्जी लाइक द एवरेज एनर्जी ऑफ दिस bunch of electrons, n bunch of electrons. So ये आपके पास एनर्जी आ गई। इट्स रिमेंबर इट्स द क्लासिकल मैकेनिक्स। सो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यू विल फाइंड दैट कि आपके पास जो हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय 3/2 r, वेयर दिस r इज n kb। यहाँ जो ये n kb है इसको आप r से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, जनरल गैस कांस्टेंट जैसे होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्रीटेड लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। ओके, सो अब ये जो एक्सप्रेशन है दैट्स एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूड। ये अपने थ्योरेटिकली जो कैलकुलेट किया क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई करते हुए, तो आपके पास 3/2 r आ रहा है, जबकि इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट फ्लक्चुएट, दैट इज डिफरेंट विद अ फैक्टर ऑफ 10⁻²। 10⁻² के डिफरेंस से वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। सो इसका मतलब ये है कि क्लासिकल जो मैकेनिक्स है दैट कैन नॉट एक्सप्लेन इट, सो वी हैव टू कंसिडर द क्वांटम इफेक्ट्स। फॉर दीज क्वांटम इफेक्ट्स, एज आई टोल्ड यू, electrons are not the classical particles. Okay, so उस केस में फिर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है that cannot be the classical distribution like the Boltzmann distribution or statistical distribution, तो वो नहीं हो सकती। then we have to go to the quantum statistics.